Hello friends, so I am back again with another very important chapter of your English portion regarding your CDS examination which is coming up on the 4th of September. So since a lot of you had requested this, so I have brought forward an exercise on spotting errors, because this is one chapter in which most of us tend to make a lot of mistakes. So let us find out how to solve spotting errors. Now what we will do is, first I will give you some tips and tricks, and then we will try to apply them on the questions so that you are able to understand how to use them. So let's start. Number one point that you must keep in your mind is read the sentence in parts. Read the sentence in parts. So जब आप अपने questions देखते हो, your sentence is written in portions like A, B, C and D. कुछ पार्ट आपके सेंटेंस का ए पार्ट में होता है, कुछ बी में, कुछ सी में, एंड डी पार्ट इज यूजुअली नो एरर, राइट. सो यू मस्ट रिमेंबर दैट जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हो, यू मस्ट रीड ओनली पार्ट ए फर्स्ट. इफ यू फाइंड एन एरर इन दैट, वेल एंड गुड, अदरवाइज मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. देन रीड पार्ट बी. If you find an error in that, then that is the answer. If not, you'll move to part C, and so on and so forth. If you're not able to locate any error in any part, then the answer would be no error. Here comes the second point. You must remember that sometimes the answer can even be no error. Right? There is no rule which says that आपके sentence में error होगा ही. कई बार नहीं भी होता error. But we are so hell-bound on finding out an error that we usually overlook this option. Please do not do that. Now, moving on. Your third point is that you must remember the contemporary pairs like no sooner than, right? Hardly had I entered the room when. You must remember these kind of contemporary pairs. You must remember कि prefer के साथ to आता है. You must remember that when you are saying wishful things, you usually write if I were. तो अभी एरर क्या होंगे? जब नो सूनर वाला सेंटेंस है तो फटाफट से आपको दैन वाले पोर्शन पे जाना चाहिए. यूजुअली यही एरर होगा. सेम विद हार्डली एंड व्हेन. प्रेफर के साथ टू आना चाहिए, यहाँ पे एरर होगा. इफ़ आई वर को इफ़ आई वर की जगह इफ़ आई वॉज लिख देंगे, दैट विल बी द एरर. सो अभी आई एम होपिंग अभी तक आपने कई तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑलरेडी कर लिए होंगे, तो आपको कुछ आइडिया होगा कि जनरली सेंटेंस में कहाँ पे एरर होती है. आपको ये पता लग जाता है, राइट? विच ब्रिंग्स मी टू माई फोर्थ पॉइंट, दैट इज प्लीज़ ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स. प्लीज़ ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स मतलब, इसका मतलब ये है कि हम कई सालों से हम इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना. We have heard English songs, we have listened to English web series, we have watched English movies. There are so many people we have met जहाँ पे we have talked in English also, right? So your brain already knows the correct answer. आपके brain के subconscious part में already आपको correct English वाला version जो है stored होता है. So you must trust your instinct. अगर part A पढ़ते हुए आपके दिमाग आपको ये बोल रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है बॉस, है ना, तो दैट इज़ द आंसर. प्लीज़ गो विद इट. 90% ऑफ द टाइम्स दिस विल बी द केस. प्लीज़ फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स. नाउ हैविंग लर्नड अ फ्यू ट्रिक्स, लेट्स ट्राई टू अप्लाई देम ऑन अ फ्यू क्वेश्चंस. लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. एज आई रीच्ड द हॉस्पिटल, आई हैड फाउंड अ ग्रेट रश ऑफ विजिटर्स whose relatives had been admitted there for one or the other ailment. अभी what did I do? I read the whole sentence. तो मुझे इसमें कुछ एररनेस लगा ही नहीं. लेकिन नाउ लेट अस अप्लाई माई ट्रिक एंड रीड इट इन पार्ट्स. पहले हम सिर्फ पार्ट ए को पढ़ेंगे. एज आई रीच द हॉस्पिटल, इसमें कोई गलती नहीं है, सो दिस इज नॉट द आंसर. आई हैड फाउंड अ ग्रेट रश ऑफ विजिटर्स. आई हैड फाउंड अ ग्रेट रश ऑफ विजिटर्स. नो, दिस इज आवर आंसर. वाई? बिकॉज आई हैड नहीं, आई फाउंड. मैंने ये देखा कि वहाँ बहुत लोग आए हुए थे. आई हैड फाउंड नहीं आएगा यहाँ पे, राइट? लेकिन जस्ट टू कन्फर्म हम आगे पढ़ लेते हैं. हुज रिलेटिव्स हैड बीन एडमिटेड देयर. हुज रिलेटिव्स हैड बीन एडमिटेड देयर, इस ऑप्शन में भी कोई गलती नहीं है. फॉर वन और दी अदर एलिमेंट, एक या एक से अधिक टाइप की बीमारियों के लिए उनको वहाँ पे एडमिट किया गया था, यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है.
सो गलती डेफिनेटली बी पार्ट में है एंड दैट इज़ आवर आंसर. मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 2. यू मे नॉट नो इट, शायद तुम्हें ये पता नहीं है, ये तो करेक्ट है. बट दिस इंजन इज, अगेन देर इज़ नो एरर. क्लेम्ड टू हैव ट्वाइस, अभी यहाँ तक भी कोई गड़बड़ नहीं. ट्वाइस एज पावरफुल एज द प्रीवियस वन, नो, यहाँ पे एरर है. इट इज़ नॉट एज पावरफुल एज, इट विल बी, दिस इंजन इज क्लेम टू हैव ट्वाइस एज मच पावर एज द प्रीवियस वन. जो पिछला इंजन था उससे 2 गुनी पावर है इसमें. सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट. सो जब आप पार्ट्स में पढ़ोगे आपके सामने आंसर खुद ब खुद कूद के आएगा. जस्ट ट्राई टू रीड इट इन पार्ट्स. आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड डेज, इसमें तो कोई एरर नहीं. व्हेन आई वॉज यूज टू गो, अब देखो पढ़ते ही पता लग गया यहाँ पे गड़बड़ है. व्हेन आई यूज टू गो आएगा, वॉज यूज टू नहीं. सो दिस विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, द हाउस वेयर द डेड मैन वॉज फाउंड, वो घर जहाँ पे वो मरा हुआ आदमी मिला था, इज़ बीइंग गार्डेड बाय पुलिस. यहाँ पे भी कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है. टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग एंटर्ड, तो ये सुन के मुझे थोड़ा गड़बड़ लगा तो हम इसको भी पेंडिंग में रखेंगे. एंड द एविडेंस इंटरफेयर्ड विद, इसमें भी कोई एरर नहीं है. विद यहाँ क्यों लगा है कि इसकी हिंदी ये बनेगी कि उसके एविडेंस से कोई छेड़खानी ना करे. इंटरफेयर्ड विद इज़ द करेक्ट वर्जन. तो अब यहाँ इसको दोबारा पढ़ो. टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग एंटर्ड, ये गलत है. क्यों? क्योंकि बीइंग एंटर्ड के साथ इनटू आएगा. बीइंग एंटर्ड इनटू, उसके अंदर कोई ना जाए. अब ये अंदर कोई ना जाए उसके लिए इनटू लिखा जाना बहुत ज़रूरी था. तो सी विल बिकम आवर करेक्ट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. द टीम लीडर्स इनकरेजेस, अभी पहले ही पार्ट में एरर है. अब इसको आप ध्यान से समझो. दिस इज़ अ रूल. अगर टीम लीडर लिखा हुआ होता, अगर टीम लीडर लिखा हुआ आता तो इनकरेजेस करेक्ट था. लेकिन यहाँ पे टीम लीडर नहीं है, इट्स अ प्लूरल. टीम लीडर्स है. तो जब हमारा जो नाउन है दैट इज़ सिंगुलर तो वर्ब के साथ एस आएगा. लेकिन अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो हम एस को काट देंगे. यहाँ प्लूरल है सो इनकरेज आएगा, इनकरेजेस नहीं. मूविंग ऑन, द 5 मेंबर कमिटी वर नहीं आएगा यहाँ पे. दिस इज़ एन एरर. वाई? बिकॉज देखो कमेटी इन इटसेल्फ इज़ अ सिंगुलर एंटिटी. कमेटी अपने आप में सिंगुलर है ना, और कमेटी इज सिंगुलर. जब चाहे वो 5 मेंबरों की हो चाहे 8 मेंबरों की, एक कमेटी अपने आप में सिंगुलर आइटम है. तो सिंगुलर आइटम के साथ यहाँ पे वॉज आना चाहिए था. द 5 मेंबर कमिटी वॉज. आगे पढ़ लो आप. ऑफ द व्यू दैट द प्रेजेंट सर्विस कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस कंपनी आर क्वाइट गुड. बाकी चीज़ में तो एरर है ही नहीं, यहाँ पे एरर है. हिज स्पीच वॉज, देखो पहला पार्ट पढ़ो. हिज स्पीच वॉज, लेट मी इरेज इट ऑन टॉप सो दैट यू आर एबल टू रीड इट. सो हिज स्पीच वॉज, इसमें कोई एरर नहीं. दिस इज़ नॉट द आंसर. जज्ड बाय मेनी, ठीक है, यहाँ भी कोई एरर नहीं. एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीच, ओके, इसको भी हम होल्ड पे रखेंगे. गिवन इन द फंक्शन, गिवन इन द फंक्शन में कोई एरर नहीं है. सी पार्ट को दोबारा पढ़िए आप. हिज स्पीच वॉज जज्ड बाय मेनी एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीचेज. एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीचेज. स्पीच नहीं आएगा यहाँ पे. सो दिस इज द एरर. मूविंग अहेड. अब देखो मैंने आपको कंटेम्प्रेरी पेयर कराए थे, यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखेंगे. हार्डली हैड आई, नो एरर. एंटर्ड द कंपार्टमेंट, अगेन नो एरर. दैन आई मेट, अब देखो यहीं पे एरर मिल गया आपको. व्हेन आएगा यहाँ पे, दैन नहीं. दिस विल बी व्हेन. तो देखा मैंने आपको बताया भी था, जहाँ हार्डली होगा उसका कंटेम्प्रेरी पेयर फटाफट देखिए आप. दिस इज़ अ PYQ. लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज़ अ PYQ and this is very much a question of the serious examination itself. तो आप देखिए आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. मूविंग अहेड. प्रमोद सेड दैट, ओके दिस इज करेक्ट. ही प्रेफर्ड अ वाइट शर्ट, राइट, दैन कलर्ड वन. अब देखो दिस इज रॉन्ग. वाई? दैन की जगह यहाँ पे टू आएगा. मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था. ही प्रेफर्ड अ वाइट शर्ट टू द कलर्ड वन, तो ये गलत हो गया.
नाउ द मदर एज वेल एज द चिल्ड्रन, द मदर एज वेल एज द चिल्ड्रन, अब ये इसमें तो कोई एरर है नहीं, आर टू बी ब्लेम्ड, आर नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों? अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जो आपका फर्स्ट वर्ब है, जो आपका पहला नाउन है, सॉरी, आप अपने पहले नाउन के साथ जाओगे, द मदर इज़ अ सिंगुलर एंटिटी, तो यहाँ पे इज़ आएगा, हालांकि बाद में चिल्ड्रन प्लूरल है, लेकिन हम फर्स्ट नाउन के साथ जाएंगे, फर्स्ट नाउन इज़ द मदर, इट्स अ सिंगुलर नाउन, दिस इज़ अ सिंगुलर नाउन, सो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर के साथ वाली ही आनी चाहिए, यहाँ इज़ आना चाहिए था। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार आते हैं, दिस इज़ ऑल्सो PYQ, प्लीज़ काइंडली मेमोराइज दिस रूल कि पहले नाउन के साथ ही जाएंगे हम। तो अगर यहाँ पे मान लो ऐसा क्वेश्चन होता, ईच वन ऑफ द बॉयज़, ईच वन ऑफ द बॉयज़ वॉज ऑफ द व्यू, तो क्या मैंने करेक्ट लिखा है? इज़ दिस करेक्ट? येस इट इज़ करेक्ट। वाई? बिकॉज ईच पहले आया है, बॉयज़ बाद में, ईच इज़ वन, वन पहले आया है, सिंगल पहले आया है, द सिंगल एंटिटी हैज़ कम फर्स्ट, तो यहाँ पे जो वॉज है वो जस्टिफाइड है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ओके। जो पहला नाउन का फॉर्म है हम उसी के साथ जाएंगे। मूविंग अहेड, ऑर्डर हैज़ बीन इशूड, करेक्ट, फॉर हिज ट्रांसफ़र टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, ये भी करेक्ट है, बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड देम, देम नहीं आएगा, क्यों? अभी हमने जस्ट राइट नाउ वी हैव रेड दिस रूल, ऑर्डर इज सिंगुलर, तो यहाँ इट आना चाहिए था, ऑर्डर्स होता तो देम ठीक था, लेकिन यहाँ सिंगुलर ऑर्डर है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। मूविंग अहेड, आई एम सीनियर दैन हिम बाय 2 years, आई एम सीनियर तो ठीक है, बाय 2 years भी ठीक है, दैन हिम नो, टू हिम, आई एम सीनियर टू हिम, आपने कई बार ये सुना भी होगा, आई एम सीनियर टू हिम, आई एम जूनियर टू हिम, तो सीनियर जूनियर के साथ भी टू आएगा, सीनियर जूनियर के साथ भी टू आएगा, और टू किसके साथ पढ़ा था हमने अभी? प्रेफर के साथ, राइट, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर 13, ही वेंट टू इंग्लैंड टू वर्क एज अ डॉक्टर, ये तो सही है, बट रिटर्नड बैक, अब देखो सुपरफ्लुअस फॉर्म, दिस इज़ रॉन्ग, या तो आप सिर्फ रिटर्न लिखो या आप सिर्फ बैक लिखो, दोनों को आप एक साथ यूज़ नहीं करोगे, दिस इज़ सुपरफ्लुअस फॉर्म, ये हम बहुत बार बोलने में भी गलती करते हैं, रिटर्न बैक इज़ रॉन्ग, यू आइदर रिटर्न और यू कम बैक, तो दिस इज़ रॉन्ग। ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शी इंक्वायर्ड वेदर एनीवन हैज़ सीन हर बेबी, अभी सी पार्ट गलत है, वाई? बिकॉज शी इंक्वायर्ड मतलब इट इज़ इन पास्ट टेंस, तो फिर हैज़ क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? हैड आना चाहिए था ना, हैड आना चाहिए, शी इंक्वायर्ड वेदर एनीवन हैड सीन हर बेबी, अभी सेंस बन रही है ना, सो सी इज़ रॉन्ग। When I went outdoor, I found frost everywhere, पहली बार में पढ़ने में इस सेंटेंस में हमें कोई गड़बड़ नज़र नहीं आएगी। I assure you 90% of the people watching this would have marked this as a no error answer, but my friends, you are very wrong. Why? Because when I went outdoors, outdoor नहीं, when I went outdoors I found frost everywhere, जब मैं बाहर गया, बाहर जाने को outdoors बोलते हैं, outdoor नहीं, this is wrong, and I know that most of you would have made this mistake, please remember it for the next time. These are correct है, his ये भी correct है, conclusion remarks no, these are his concluding remarks, concluding remark होता है, conclusion remark तो आपने I am sure इस बात की तो मेरे को श्योरिटी आप में से किसी ने कभी भी नहीं सुना होगा, it's always concluding remarks. Look at question number 17, the shopkeeper, ये तो ठीक है, either offered to exchange, either offered to exchange, इसको अभी हम गड़बड़ में रखेंगे, the goods, ये ठीक है, और refund the money, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ गड़बड़ है, वर्ड्स की इंटरचेंजिंग की गई है, द शॉपकीपर ऑफर्ड आइदर टू एक्सचेंज द गुड्स और रिफंड द मनी, दुकानदार ने बोला या तो एक्सचेंज करवा लो या पैसे वापस ले लो, यहाँ जो है ना वो ऑफ़र के बाद आनी चाहिए,
उसने ऑफ़र में ही आपको ये ऑप्शन नहीं दिया कि आप अच्छा कोई और ऑप्शन ले लेना. नो, ऑफ़र पहले आएगा उसके बाद इधर आएगा. दिस इज़ रॉन्ग. आई होप दिस इज़ क्लियर. लुक एट क्वेश्चन नंबर 18. चर्चिल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉर लीडर्स. दोबारा पढ़ते हैं. चर्चिल वॉज, ये करेक्ट है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, करेक्ट. वॉर लीडर्स, करेक्ट. सो आंसर इज नो एरर. अभी कई लोग इसमें भी बी को एररनेस मार्क करके आएंगे क्योंकि एरर तो होना ही चाहिए ना. लेकिन मैंने अभी आपको समझाया था इन द बिगिनिंग, कई बार आपके आंसर नो एरर भी हो सकता है. प्लीज़ कीप दैट ऑप्शन ओपन. प्लीज़ कीप दिस ऑप्शन ओपन. लुक एट द 19th क्वेश्चन. वी शुड कीप, ये तो ठीक है, सच पीपल, करेक्ट, एट एन आर्म्स लेंथ. आई अगेन अश्योर यू, आप में से बहुत लोगों ने इसको नो एरर मार्क कर दिया होगा, बट नो. मैं मानती हूँ दैट अ इज़ अ वावल एंड दैट एन हैज़ टू बी यूज्ड, बट आर्म्स लेंथ इन इटसेल्फ इज़ एन इडियम. इसके आगे एन नहीं लगेगा. वी शुड कीप सच पीपल एट आर्म्स लेंथ, एन नहीं आएगा यहाँ पे. सो सी पार्ट हैज़ द एरर. प्लीज़ रिमेंबर दिस. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. माई फ्रेंड इज़ गोइंग टू अ मूवी एवरी वीक. माई फ्रेंड ठीक है, टू अ मूवी एवरी वीक ये भी ठीक है. इज़ गोइंग नहीं, गोज़, वो अभी भी जाता है या जाती है, ठीक है. सो माई फ्रेंड गोज़ टू अ मूवी एवरी वीक, ये उसका हर हफ्ते का काम है, हर हफ्ते इसको मूवी देखने जाना है, तो गोज़ आएगा. सिंपल, यू विल यूज़ द सिंपलेस्ट वर्ब हियर. वाई? बिकॉज दिस इज़ अ रूटीन. ये एक रूटीन है. ही गेट्स अप एंड ब्रशेज हिज टीथ एवरी डे. ऐसा थोड़ी है ही गेट्स अप एंड इज गोइंग टू ब्रश हिज टीथ एवरी डे. नो, ही गेट्स अप एंड ब्रशेज. वैसे ही माई फ्रेंड गोज़ टू अ मूवी एवरी वीक. सो ये एररनेस है. सो फ्रेंड्स, आई होप दैट ऑल योर डाउट्स हैव बिन क्लैरिफाइड. आई होप कि इस मेथड से आप ये क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे. प्लीज़ रिमेंबर, पार्ट्स में पढ़ना है आपको. सेंटेंस कंटेम्प्रेरी पेयर्स के ऊपर आपको फोकस करना है. यूजुअली उन्हीं में गलती होती है. थर्ड, फॉलो योर इंस्टिंक्ट. इट्स यूजुअली करेक्ट. 90% ऑफ द टाइम्स इट इज़ करेक्ट. प्लीज़ फॉलो इट. एंड फोर्थ, प्लीज़ कीप द नो एरर ऑप्शन ओपन. नो एरर को ओपन रखिए प्लीज़. I hope with these tips you will be able to ace your spotting errors chapter. Thank you so much for watching my videos. I have received a humongous response from every one of you, and I am deeply very thankful to each one of you who took out his or her time to watch my videos. Please join my Telegram channel. The link of my Telegram channel will be in the description of the video. You can join it. I conduct daily quizzes of English as well as of GS on my Telegram channel. And their previous year questions. So I am hoping that I would see more of you in my group. Thank you so much and all the best for your upcoming examinations.